Good afternoon, student. Good afternoon, sir. Good afternoon. Okay, what we discussed in last lecture? Anybody? Sir, convolution theorem and convolution of Laplace transform. Okay, means we have discussed convolution theorem to find the Laplace and inverse Laplace transform. Okay, and I think we already done 2 to 3 examples. है ना? तो यहाँ पे देख लो, you can see on your screen what we discussed. Yes, so I think this is the PPT of last lecture. 1 upon s square s minus 1, we already done it. Okay, s upon s square plus 4 whole square, we already done it. I give this example in homework. Yes or no? Yes. है ना? किया है? ट्राई किया किसी ने? ट्राई किया है? यस और नो तो बताओ. No, sir. नो करेंगे या नहीं करेंगे? हाँ या ना तो बताओ. Yes, sir. ओके ओके, ट्राई करना. मैं आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूँ. एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप इस तरीके से स्प्लिट कर सकते हो. एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. नाउ यू कैन ऑपरेट कॉन्वोल्यूशन थियरम, है ना, एंड देन फाइंड आउट द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म. करेंगे या करवाऊं? करेंगे सर. ओके चलो, तो ये होमवर्क में ही जाने दे रहा हूँ. सिर्फ आपको ये हिंट छोड़ देता हूँ मैं यहाँ पे. एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ओके, ट्राई फॉर दिस, है ना. इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म दोनों साइड पे ऑपरेट करना है, देन गो फॉर द फाइनल आंसर. नाउ टुडे वी स्टार्ट विद दिस एग्जांपल in our lecture. So this is the convolution of the Laplace transform, example of the convolution of Laplace transform. So you can see on your screen, using convolution theorem find the inverse Laplace transform following function 1 upon s square plus a plus b into s plus ab. ये एग्जाम्पल देखते ही आप लोग डर जाएंगे कि सर इसमें कैसे करेंगे. ओके, तो ये इजी है, लेकिन आपको अंदर जो छुपा हुआ है उसको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा. सो कैसे करेंगे? यू कैन सी हियर 1 अपॉन यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस ए एस प्लस बी एस प्लस सी प्लस ए बी, ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं मैं? सो यू कैन सी हियर 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एस प्लस ए बी इक्वल टू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए एस प्लस बी एस प्लस ए बी. ओके, नाउ you can take a common from first two terms, that means s is common, s plus as plus b is common, s plus a. Now you can see here you have the s plus a into s plus b. Yes or no everybody? Yes, sir. ओके, अब इसको अगर आप सोचें तो यहाँ पे आपके पास दो वेल नोन जो हम जानते हैं उसके दो फंक्शन है. वन है 1 अपॉन एस प्लस ए एंड सेकंड है 1 अपॉन एस प्लस पी. ओके, तो उसको एक को एफ एस बोलना है, दूसरे को जी एस. ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं नेक्स्ट में. सो लेट एफ एस इज इक्वल टू 1 अपॉन एस प्लस ए एंड g of s is equal to 1 upon s plus b. अब यहाँ आ जाओ क्योंकि पीछे नहीं दिख रहे हैं इसे. सो यहाँ पे लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस इज इक्वल टू, एंड यहाँ पर भी लाप्लास इनवर्स ऑफ जी एस. व्हाट इज द लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस? चलो बताओ क्या होगा इसका है? क्या होगा? यहाँ तो मुझे आंसर मिल गया ऑफलाइन से. ऑनलाइन वालों क्या बोल रहे हो आप? बोलो. व्हाट इज द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 अपॉन s प्लस a? E raised to 80. E raised to minus t. e raised to minus 80 होगा ना? Yes, sir. है ना? यस.
So Laplace inverse of यहाँ पे 1 upon s plus b. So what is the inverse Laplace of the 1 upon s plus b? E raised to minus minus bt. BT. Okay. So this is our fs and gs. Now here we write down the convolution theorem. So by convolution theorem, okay, by convolution theorem, what we have? Laplace inverse of fs into gs is equal to Laplace inverse of fs star Laplace inverse of gs. Yes or no? Yes or no, everybody? Is it okay? Yes, sir. Okay, so now replace the value of fs and gs in above expression. So we have 1 upon s plus a, that is our fs, 1 upon s plus b, that is our gs. Now Laplace inverse of 1 upon s plus a star Laplace inverse of 1 upon s plus b. Okay, now here we already find out the Laplace inverse, so it is e raised to minus at star e raised to minus bt. Now how we can remove this star? Star means convolution. Integration. Star को कैसे remove करेंगे? Integration, sir. Yes, integration. What is that integration? 0 to t, है ना? मैं आपको रिवाइज करवा दूं जो नहीं थे उनके लिए. f स्टार g क्या होता है? इंटीग्रेशन 0 to t f of u g of t minus u du. Yes or no? Yes, sir. है ना? तो यहाँ पे हम वही करेंगे. तो e रेस टू माइनस ए टी में आपको u रिप्लेस करना है. e रेस टू माइनस ए यू इंटू g, दैट मीन्स g माइनस b इंटू t माइनस u इंटू du. इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. नाउ क्लब इट, दैट मीन्स 0 टू t. यहाँ पे देखो e रेस टू माइनस बी टी जो है उसको मैंने कॉमन ले लिया है. e रेस टू माइनस ए यू माइनस माइनस प्लस बी यू हो जाएगा, तो उसको मैंने मर्ज कर दिया है. कर सकते हैं कि नहीं? या फिर एक बीच में स्टेप करता हूँ, चलो तो आपको ज्यादा पता चलेगा. 0 टू टी e रेस टू माइनस ए यू इंटू ई रेस टू माइनस बी टी इंटू ई रेस टू माइनस माइनस प्लस डी यू डी यू. नाउ इज इट ओके? Yes, sir. Sir. Okay. Now e raised to minus bt is independent of u, so we can take outside. So e raised to minus bt is outside. Now 0 to t is there. e raised to यहाँ पे होगा माइनस ए प्लस बी इंटू यू इंटू डी यू. So e raised to minus bt. Now what is the integration of e raised to ax? e raised to ax upon a, है ना? तो यहाँ पे e raised to माइनस a प्लस b इंटू यू डिवाइड बाय माइनस a प्लस b एंड लिमिट विल बी 0 टू t. यस और नो? Yes, sir. ओके, तो यहाँ पे आपको क्या रखना है? देखो e raised to माइनस बी टी इंटू e raised to माइनस a प्लस b इंटू टी डिवाइड बाय b माइनस ए लिखूँ तो b चलेगा, माइनस यहाँ पे 0, दैट मीन्स e रेज टू 0 अपॉन b माइनस a. सो वी हैव e रेज टू माइनस bt अपॉन b माइनस a इंटू यहाँ पे क्या मिलेगा? e रेज टू माइनस a प्लस b इंटू t माइनस 1. यस और नो? Yes, sir. अब इसको अगर मैं अंदर ले जाऊं, है ना, इसको मल्टीप्लाई करूं सिर्फ एक्सपोनेंशियल को, है ना, और b माइनस ए को मैं एज इट इज रहने देता हूं. तो इसको अगर मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या होगा? देखो e रेज टू माइनस ए टी प्लस बी टी माइनस बी टी माइनस e रेज टू माइनस बी टी. सो वी हैव ओनली e रेज टू माइनस ए टी माइनस e रेज टू माइनस बी टी
divided by b minus a. That is our required inverse Laplace transform of the given expression. So is there any doubt, any question in this example? Anybody? No, sir. No doubt, sir. No doubt, sir. No doubt. Okay, so we go for the next. चलो next No चलते doubt, हैं. sir. Okay, thank you. Now next is very important. हो गया? लिख दिया ना? बाकी? Okay. Next topic is Laplace transform of derivative and integral. Okay, तो डेरिवेटिव में क्या करना है? तो जो हमारी ओरिजिनल फॉर्मूला है उसको हम यूज करेंगे और उसके लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं, लिखते हैं. चलो, जिसका बाकी है वो लिख दो पहले, देन वी गो फर्दर. हो गया? ओके, चलो नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने आपको बोला था कि एक कॉन्वोल्यूशन का एग्जांपल पूछा जाता है 100%. ऐसे ही ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म डेरिवेटिव्स एप्लीकेशन का एक पूछा जाएगा, लेकिन वो करने के लिए दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना. सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रल्स. ओके, सो फर्स्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्म डेरिवेटिव्स. So suppose we are given that function f of t and we want to find Laplace transform f dash t. Means इसमें करना क्या है? So we already know that if Laplace transform df by dt है, so how we can find the Laplace transform of this function? That is the aim of this topic. Okay? और Laplace transform d square f by dt square है, तो how we can find? And same way higher order means d cube by f divide by dt cube है, so how we can find? So all these concepts comes under the Laplace transform derivatives. Is it okay, everybody? Understand? Yes, sir. ओके ओके. अब मुझे बताओ कि फर्स्ट फॉर्मूला कौन सा था हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी की फॉर्मूला क्या थी? कोई बताएगा मुझे या भूल गए? मेन फॉर्मूला क्या था? मेन फॉर्मूला इंटीग्रेशन 0 to Infinity. 1 upon s. No, f of t e raised to minus st. STBT. Very good. Okay, so this is my original formula. So whenever you want to derive any formula, then always go through it. Okay, so यहाँ पे मुझे लाप्लास ट्रांसफॉर्म f dash t चाहिए, तो simply substitute the f of t by f dash t. Yes or no? So यहाँ पे देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्म f dash t is equal to integration 0 to infinity e raised to minus st f dash t dt. तो यहाँ तक सबको पता चल गया? Yes or no? Yes, sir. Okay. अब f dash t is nothing but d by dt of f of t, तो मैंने उसको भी as it is रख दिया. Now okay. सर वापिस समझाओ तो वो. नहीं, किसी का भी डेरिवेटिव मीन्स जो भी वेरिएबल है उसके लिए हम लिखते हैं ना डेरिवेटिव ऑफ टी ऑफ एफ ऑफ टी Yes, sir. विथ Yes, sir. रिस्पेक्ट टू टी, है ना. हाँ, yes, sir. तो वही हमने लिख दिया यहाँ पे. ओके, नाउ we can integrate this. So we have only uv rule, but the selection of u and v is very important. ओके, तो यहाँ पे क्या है? u क्या है यहाँ पे? u क्या लेंगे? सर ई रेस टू सॉरी सर फंक्शन ले लेंगे यू. नहीं, देखो यहाँ पे इसको अगर u लिया तो उसका तो डिफरेंशिएशन करते जाना है आपको, तो वी कैन नॉट स्टॉप इट, है ना. तो अब इसको u लेना पड़ेगा. अंडरस्टैंड? यस सर. और इसको हम बोलेंगे v. ओके, सो u as it is, so e raised to minus st as it is. Now integration of this one. अब integration of d by dt of f of t with respect to dt क्या होगा? f of t itself, yes or no? Yes, sir. है ना, क्योंकि डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन तो एक दूसरे के फ्रेंड है ना.
यस और नो? तो ये तो Yes, sir. निकल गए, तो यहाँ पे खुद एफ ऑफ टी बच गया है ना। तो ई रेस टू माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, हम यूवी रूल अप्लाई कर रहे हैं, माइनस इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी डेरिवेटिव ऑफ यू दैट मीन्स माइनस एस ई रेस टू माइनस एस टी, एंड यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन मीन्स एफ ऑफ टी इटसेल्फ इंटू डी टी। अब यहाँ पे यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को? एनीबडी? एनी डाउट स्टूडेंट? ओके, अब इन्फिनिटिव रिप्लेस कर रहा हूं, सो ई रेस टू माइनस इन्फिनिटिव की वैल्यू क्या होती है? अरे यार माइनस एस कहाँ गया? माइनस एस, हाँ, डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू माइनस एस टी मीन्स डी बाई डी टी ऑफ ई रेस टू माइनस एस टी क्या होगा? माइनस एस ई रेस टू माइनस एस टी होगा ना, यस सर। है ना, वही लिखा हुआ है। ओके, e raised to minus infinity, what is the value of e raised to minus infinity? हाँ, yes, zero, very good, so zero मैंने रख दिया पहले। अब जीरो रखना है तो e raised to zero that means 1 and t की जगह पे जीरो रखना था that means f of 0. okay, done? यहाँ तक डन? यस सर। या अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, अब s यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक से छूट गया है। ओके, सो s एज इट इज 0 to infinity e raised to minus st as it is f of t. Now you can see here this is nothing but the our original formula of Laplace transform. So can we write down in this way, minus f of 0 plus s Laplace transform f of t? Yes or no? અહીંયા છે લાઈ લાઈ Yes. Okay, any confusion? Anybody? No, sir. यहाँ पे हमारे पास नई फॉर्मूला आई कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ डैश टी या फिर लाप्लास ट्रांसफॉर्म डी एफ बाई डी टी इज नथिंग बट एस इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ 0. ओके, डन? ओके, नाउ सेम फॉर्मूला अगर एफ डबल डैश के लिए चाहिए तो जहां जहां पे एफ है वहां पे मुझे एफ डैश ऑपरेट करना है। यस और नो? तो यहाँ पे देखो एस लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ डैश टी माइनस एफ डैश 0 हो गया। अब ये इसके लिए तो हमारे पास फॉर्मूला है तो मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया एस इंटू एस लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ 0 माइनस एफ डैश 0. नाउ ओपन इट, सो एस स्क्वायर लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी minus s into f of 0 minus f dash 0, that is my Laplace transform f double dash. And similarly we can solve for the f triple dash, s cube Laplace transform f of t minus s square f of 0 minus s f dash 0 minus f double dash 0 and so on. इसे मुझे nth के लिए चाहिए तो ऊपर भी मेरे पास फॉर्मूला है s raised to n Laplace transform f of t minus s raised to n minus 1 f of 0 minus s raised to n minus 2 f dash 0 and s raised to n minus 3 and so on. Okay? अब इसको याद कैसे रखेंगे तो इसके लिए मैं जैसे याद रखता हूँ वैसे आप रख सकते हो। तो यहाँ पे देखो अगर थर्ड डेरिवेटिव है तो आपको s क्यूब से स्टार्ट करना है, सेकंड है तो s स्क्वायर से, सिंगल है तो s से, है ना। अगर s रेज टू 4 करना है तो यहाँ पे फोर्थ डेरिवेटिव होना चाहिए। इज इट ओके? फर्स्ट स्टेप पता चल गया? अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? चलो मैं यहाँ पे मुझे फिफ्थ डेरिवेटिव के लिए लिखना है। हाँ, देखना मैं कैसे लिख रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले मेरा फिफ्थ ऑर्डर है तो s रेज टू 5 से स्टार्ट करूँ, s रेज टू 5 माइनस s रेज टू 4 माइनस s क्यूब माइनस s स्क्वायर माइनस s एंड लास्ट में माइनस s रेज टू 0। ओके, वहां तक जाना है आपको। अब फर्स्ट स्टेप आपका फिक्स है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी ही लेना है उसके साथ। ओके, आप कोई भी फॉर्मूला देखो यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी, यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी, यहाँ पर भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी, वो फर्स्ट फिक्स है। सेकंड भी फिक्स है,
एफ ऑफ 0 होगा, थर्ड है एफ डैश 0, फोर्थ है एफ डबल डैश 0, एफ ट्रिपल डैश 0 एंड एफ फोर्थ टाइम डैश 0. ऐसे करके आपको बनाना है फॉर्मूला. इज इट ओके? एवरीबॉडी नाउ अंडरस्टैंड? गॉट इट? पता चल रहा है? ओके. एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनीबॉडी? क्योंकि ये नहीं पता चला तो आप एग्जाम्पल नहीं कर पाएंगे, इसलिए पूछ रहा हूँ बार बार. इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन. एस रेस टू एन का फिर से रिपीट करेंगे. क्या क्या फिर से पार्थ? सॉरी सर. क्या कौन सा रिपीट करूं बेटा? सर वो एन एफ ऑफ डैश एन टाइम होगा ना सर? nth टाइम. ओके यस, ये nth टाइम होगा. यस, ये सही है आपकी बात, nth टाइम. चलो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ f रेज टू nth टाइम डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t. तो उसको कैसे लिखेंगे बताओ? चलो, s रेज टू n हो जाएगा, सेकंड माइनस करके s रेज टू n माइनस 1, थर्ड माइनस करके s रेज टू n माइनस 2 एंड सो ऑन. लास्ट अब आएगा s रेज टू 0, है ना. अब फर्स्ट मेरा फिक्स है लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी, वो तो मुझे रख ही देना है. यहाँ पे एफ ऑफ 0 वो भी मेरा फिक्स है. थर्ड में आएगा एफ डैश 0, है ना. और लास्ट में इससे एक पावर कम, दैट मीन्स एफ रेज टू n माइनस 1 डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी. सॉरी 0 0 0 और 0 के आगे. डन? इज देयर एनी डाउट, एनी क्वेश्चन नाउ पार्थ? नो सर. ओके. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स. इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, ओनली द फॉर्मूला. सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म 0 टू t f of u du आपको फाइंड करना है. सो सिंपली लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो यहाँ पे फंक्शन है डिवाइड बाय s कर देना है. ओके, फॉर एग्जांपल आपको पूछा जाए कि फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म 0 टू t e रेज टू 2t dt. तो क्या करना है आपको? सिर्फ लाप्लास ट्रांसफॉर्म e रेज टू 2t डिवाइड बाय s कर देना है. लाप्लास ट्रांसफॉर्म e रेज टू 2t क्या होगा? 1 अपॉन s माइनस 2, और s तो ऑलरेडी था ही. सो दिस इज योर लाप्लास ट्रांसफॉर्म इंटीग्रल्स. ओके, अंडरस्टैंड? यहाँ पे u होगा, सॉरी डमी वेरिएबल आएगा यहाँ पे, u आएगा. t क्योंकि हमने लिमिट में लिया इसलिए u du. ओके, अंडरस्टैंड? Yes, sir. ओके, नाउ मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड, दैट इज लास्ट दी. स्लाइड फिर से रिपीट करेंगे. ये फिर से रिपीट करो, लास्ट स्लाइड फिर से थोड़ी देर. ये वाला ना. यस सर. ओके, देखो यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म 0 टू t f of u du मींस जब भी आपको इंटीग्रेशन का लाप्लास फाइंड करना है तो सिंपली फाइंड आउट योर फंक्शन एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दैट फंक्शन डिवाइड बाय s. बस दैट इज द फॉर्मूला. तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल लाप्लास ट्रांसफॉर्म 0 टू t e रेज टू 2u du मुझे फाइंड करना है. तो मेरा ओरिजिनल फंक्शन हुआ e रेज टू 2t. तो फाइंड आउट द लाप्लास ट्रांसफॉर्म e रेज टू 2t एंड डिवाइड बाय s कर दो. दैट इज द आंसर ऑफ दिस इंटीग्रेशन. Okay, Laplace transform this integration will be Laplace of e raised to 2t divided by s. Now we have the Laplace transform of e raised to 2t, that is 1 upon s minus 2. तो 1 upon s minus 2 and already s तो था ही, तो मैंने उसको substitute कर दिया. Now is it okay Parth? Okay Parth? Yes sir. Now anybody have any problem? No, sir. Sir. Okay. Okay, now the most important method of this unit or application of Laplace transform. So application of Laplace transform मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना. हमको पता है कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, हमने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा, है ना. लेकिन हाउ टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म, दैट इज अवर एम ऑफ दिस मेथड. तो फर्स्ट एग्जांपल है, देखो
find the general solution of the following differential equation using the Laplace transform. Okay, so d square y by dt square plus y is equal to 1, that is one differential equation with the condition y of 0 is equal to 1 and y dash 0 is equal to 0. अब आपको इस टाइप का एग्जाम्पल सॉल्व करना है तो यू हैव टू फॉलो सम स्टेप्स. कौन कौन से स्टेप्स है मैं आपको बता देता हूँ. तो स्टेप नंबर 1 लिख लेना. स्टेप नंबर 1 है अप्लाई लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड्स. ओके, हम जो भी दिया है उसके दोनों साइड पे हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑपरेट करेंगे. ओके, नंबर 2 स्टेप इज कन्वर्ट y bar s is equal to something or convert expression into y bar s is equal to something. Y bar s is the Laplace transform f of t. ओके, Laplace transform f of t को हम यहाँ पे f of t नहीं y है इस यहाँ पे तो y हो जाएगा, y of t हो जाएगा. y of t जो है उसको हम y bar s बोलेंगे. ओके, उसमें हम पूरा कन्वर्ट करेंगे. देन स्टेप नंबर 3, नॉट 4, स्टेप नंबर 3. स्टेप नंबर 3 इज द अप्लाई inverse Laplace transform both sides. Okay, and last step is find y of t is equal to something, that is the solution of the given differential equation. So we will follow these 4 step. अगर ये 4 step आपने अप्लाई करना सीख लिया, ऑपरेट करना सीख लिया, then your example is very smoothly completed. Okay, आप कंप्लीट स्मूथली कर सकते हो. फिर से रिपीट कर रहा हूँ. स्टेप नंबर 1 इज अप्लाई लाप्लास ट्रांसफॉर्म. स्टेप नंबर 2 कन्वर्ट एक्सप्रेशन इनटू y बार s इज इक्वल टू समथिंग. स्टेप नंबर 3 इज अप्लाई इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड एंड स्टेप नंबर 4 इज फाइंड y ऑफ t इज इक्वल टू समथिंग. ओके, चलो यहाँ पे करते हैं तो आपको जल्दी पता चलेगा, है ना. चलो फर्स्ट स्टेप क्या था, कौन बताएगा मुझे? Apply Laplace transform both the side. Yes. So here d square y by dt square plus y is equal to 1 and यहाँ पे दिया है y of 0 is equal to 1, y dash 0 is equal to 0. So this is my equation number 1. Now first step जो था मैं वही लिखूंगा, apply Laplace transform both sides. Okay, both the sides. So Laplace transform यहाँ पे हम ऑपरेट करेंगे. So Laplace transform d square y by dt square plus Laplace transform y is equal to Laplace transform 1. So what is the formula for Laplace transform d square y by dt square? सेकंड ऑर्डर है तो s स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे. s स्क्वायर माइनस s रेज टू 0. ओके, तो यहाँ पे s स्क्वायर है तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म फर्स्ट हो जाएगा y ऑफ t इटसेल्फ माइनस सेकंड इज y ऑफ 0, थर्ड वन इज y डैश 0. यहाँ पे f की जगह पे y है तो जहाँ जहाँ पे f था वहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली y हो जाएगा. अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? Yes, sir. ओके, Yes, sir. यस. प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म y को मैं y ऑफ t ही बोल सकता हूँ, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि y इज ओनली डिपेंड्स ऑन t. यहाँ पे t इंडिपेंडेंट है, y इज डिपेंडेंट है. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 upon s. Yes, 1 upon s. Yes. Now replace Laplace transform y of t is equal to y bar s. ओके, उसको y bar s बोलेंगे. y of 0 is equal to 1 and y dash 0 is equal to 0. इसमें मुझे रिप्लेस करना है तो देखो पहले होगा s स्क्वायर y bar s माइनस s इंटू y of 0 कितना है मेरा 1 तो 1 माइनस s रेज टू 0 मीन्स 1 and y dash 0 मेरा है 0. So 0 plus again put this as y bar s is equal to 1 upon s. Everybody got it? पता चला?
तो स्लाइड अप करो ना. यस, इज इट ओके? Yes, sir. ओके, अब यहाँ पे जो बचा है उसमें से मुझे y बार एस को सब्जेक्ट बनाना है। तो देखना यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस 1 मैंने y बार एस को क्लब कर दिया है ना, y बार एस। अब ये माइनस एस है वो उस साइड चला जाएगा, सो 1 अपॉन एस प्लस एस हो जाएगा। अब एस स्क्वायर प्लस 1 में एज इट इज रख रहा हूँ, y बार एस इज इक्वल टू, यहाँ पे आप एलसीएम लो तो 1 अपॉन एस प्लस एस थे तो उसका 1 प्लस एस स्क्वायर अपॉन एस, यस और नो, यही होगा ना। Yes, sir. सो वाई बार एस इज इक्वल टू, मुझे सब्जेक्ट बनाना था स्टेप नंबर 2 में, वो मैं बना रहा हूँ 1 प्लस एस स्क्वायर अपॉन एस इंटू, यहाँ से प्रोडक्ट में था तो यहाँ डिवीजन में चला जाएगा एस स्क्वायर प्लस 1। नाउ 1 प्लस एस स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. सो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ बचा 1 अपॉन एस। सो माई स्टेप नंबर 2 इज कंप्लीटेड। स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो गया मेरा। यस सर। Yes, sir. अब स्टेप नंबर 3 क्या था? Apply inverse both side. यस, Apply inverse of Laplace. अप्लाई इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड्स। तो यहाँ पे देखना लाप्लास इनवर्स ऑफ वाई बार एस इज इक्वल टू लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस, यस और नो? यस और नो? यस सर। ओके, अब मुझे बताना एक चीज, मैंने बोला था कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ बार एस, ओके, और हमारे एग्जांपल में मैंने लिया लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाई ऑफ टी इज इक्वल टू वाई बार एस, यस और नो, ये लिया है कि नहीं? यस सर। तो मेरा लाप्लास इनवर्स ऑफ वाई बार एस क्या होगा? Y of S. y ऑफ टी। वाई ऑफ Y of एस t. होगा या वाई ऑफ टी होगा? y ऑफ टी होगा। यस, वेरी गुड। तो यही चीज यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे, दैट मीन्स वाई ऑफ टी इक्वल टू, नाउ लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस क्या आएगा? 1। तो हमारा स्टेप नंबर 4 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 4 क्या था? फाइंड वाई बाय वाई ऑफ टी इज इक्वल टू समथिंग। सर y ये फिर से रिपीट करेंगे? देखो यहाँ लाप्लास ट्रांसफॉर्म y ऑफ t मेरा मैंने बोला था y बार एस। नाउ व्हाट इज द लाप्लास इनवर्स ऑफ y बार एस? ये फंक्शन इटसेल्फ ना, यस सर। तो y ऑफ t आ जाएगा, तो मैंने उसकी जगह पे y ऑफ t रिप्लेस कर दिया। एंड यहाँ पे लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s, तो लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s क्या होता है? 1 है ना, तो मैंने 1 रिप्लेस कर दिया। तो दिस इज अवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। नाउ इज इट ओके? यस सर। है ना, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। So is there any doubt, any question in this example? Anybody? No, sir. Okay, तो आपका 8 मार्क्स का पेपर मैंने दे दिए। 4 मार्क्स इंटरनल में पूछा जाएगा 100% ये मेथड, एंड 4 मार्क्स में एक्सटर्नल में पूछा जाएगा, है ना। तो आउट ऑफ 100 आपको अब 92 मार्क्स के लिए सोचना है। ओके, डन। Yes, sir. सेकंड एग्जांपल करते हैं। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म। सो डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू 0। फिर से हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा? अप्लाई लाप्लास ट्रांसफॉर्म। सो डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू 0, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, y डैश 0 इज इक्वल टू 6। ओके, सो अप्लाई Laplace transform
both sides. So Laplace of d square y by dt square प्लस 4 लाप्लास ट्रांसफॉर्म, मैं सीधा लिख रहा हूँ है ना, डायरेक्ट फॉर लीनियरिटी प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, 4 मैंने बाहर ले लिया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म 0. अब नाउ रिप्लेस द फॉर्मूला फॉर दिस, क्या होगा, एस स्क्वायर लाप्लास ट्रांसफॉर्म y ऑफ t माइनस एस y ऑफ 0 माइनस वाई डैश 0, क्योंकि s रेज टू 0 मीन्स 1 मैंने रख दिया, प्लस 4 लाप्लास ट्रांसफॉर्म y को हम बोल देंगे y ऑफ t इज इक्वल टू, व्हाट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म 0? सर ये तो आपने पढ़ा है नहीं कभी, 0. 0 ही होगा ना क्योंकि फंक्शन इटसेल्फ 0 है ना, तो 0 ही होगा. तो ऐसा मत सोचना कि सर आपने नहीं पढ़ाया था हमको. अब देखो y ऑफ 0 क्या होता है 1, यहाँ पे हमको 1 दिया है, एंड y डैश 0 6 दिया है, तो हम यहाँ पे 3 वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे. सो एस स्क्वायर इसको बोलेंगे y बार एस माइनस एस इंटू वाई ऑफ 0 है 1, तो 1 रखा मैंने, y डैश 0 है मेरा 6 प्लस 4, इसको मैं बोलूँगा y बार एस एंड दिस इज माई 0, और यहाँ पे लिखूंगा बिकॉज लाप्लास ट्रांसफॉर्म f ऑफ y ऑफ t इज इक्वल टू y बार एस. ओके डन, यहाँ तक कोई डाउट? एनीबडी? यस और नो तो बताओ. नो डाउट सर. कहाँ पे 5 आएगा? नहीं नहीं, ये तो y डैश 0 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया ना, y डैश 0 इज इक्वल टू 6 है, इसीलिए 6 रखा. ओके, सो यहाँ पे s स्क्वायर प्लस 4 मैंने मर्ज कर दिया y बार एस, और यहाँ पे हो जाएगा s प्लस 6. ओके, अब यहाँ पे मुझे y बार एस में सब्जेक्ट बनाना है, तो y बार एस इज इक्वल टू क्या करना है, s प्लस 6 डिवाइड बाय s स्क्वायर प्लस 4. नाउ माय स्टेप नंबर 2 इज कंप्लीटेड हियर. एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? अब यहाँ से आपको थोड़ा बीच वाला गैप फिलअप करना है. कौन सा गैप फिलअप करना है कि स्टेप 2 to 3 में कैसे जाऊँ. स्टेप 2 to 3 में मीन्स डायरेक्ट इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसके ऊपर ऑपरेट करूंगा, तो इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल टू फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म? डायरेक्ट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा इस हिसाब से रख दूंगा, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 प्लस 6 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, देन वी कैन डू इट. यस और नो? Yes, sir. है ना, तो ऐसे आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स करना है. कभी कभी यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन भी होगा, लेकिन आपको y बार एस इज इक्वल टू ऐसे लाना है जिसके ऊपर आप इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करें तो डायरेक्ट आंसर आ जाए. ओके, गॉट इट? Yes, sir. Okay, so apply inverse Laplace transform both sides. Okay, दोनों साइड पे अगर हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑपरेट करते हैं तो लाप्लास इनवर्स ऑफ y बार एस इज इक्वल टू लाप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 प्लस लाप्लास इनवर्स ऑफ 6 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4. ओके, सो लाप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, और इसको मैं क्या बोलूँगा, y ऑफ t बोल सकता हूँ कि नहीं? यस और नो एवरीबॉडी? अभी मैंने समझाया था आपको. यस सर. Yes, sir. और इसको, इसका इनवर्स लाप्लास क्या होगा? सर साइन, अच्छा कॉस cos 2t है ना, s अपॉन है इसलिए cos 2t आ जाएगा, प्लस 6 में बाहर ले लेता हूँ, लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 साइन 2t Sin 2t upon 2. वेरी गुड, वेरी गुड. सो देयरफॉर y ऑफ t इज इक्वल टू मेरा हो गया cos 2t प्लस 2 कैंसिल आउट, सो वी हैव 3 sin 2t, है ना, विच इज required solution of
given differential equation. So is there any doubt, any question in this example? Anybody? No doubt, sir. No. What about others? चलो बताओ. No, sir. Okay. नो डाउट सर. थैंक यू, थैंक यू. ओके, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में सोचो. y डबल डैश प्लस 3y डैश प्लस 2y इज इक्वल टू e रेज टू t. हियर y डबल डैश प्लस 3y डैश प्लस 2y इज इक्वल टू e रेज टू t. सिर्फ यहाँ पे कंफ्यूजन करने के लिए क्या दे दिया, नोटेशन दे दिया. वहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिखा था, डी टी स्क्वायर लिखा था. यहाँ पे उन्होंने डबल डैश और डैश में दे दिया. तो एप वही की वही हमको सिस्टम करना है. तो अप्लाई लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड्स. ओके, सो दोनों साइड पे लाप्लास ऑपरेट करेंगे. सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाई डबल डैश प्लस 3 लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाई डैश प्लस 2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाई इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म e रेज टू t. सो यहाँ पे देखो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस. सो दिस इज योर s स्क्वायर इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म y ऑफ t माइनस s इंटू y ऑफ 0 माइनस y डैश 0 प्लस. अब गलती यहाँ पे करते हो, देखो 3 के बाद ब्रैकेट रखो, है ना, तो कभी गलती नहीं होगी क्योंकि 3 के साथ दो टर्म है इसके अंदर. कौन कौन से? s इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म y ऑफ t माइनस y ऑफ 0. यस और नो? क्योंकि y डैश की फॉर्मूला है ना ये, तो यस सर. है ना. तो ये 3 आप एक ही के साथ लेके आगे बढ़ जाते हो, तो वहां पे आपका पूरा एग्जाम्पल गलत हो जाता है. तो कीप इन योर माइंड 2 इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म y ऑफ t, दिस इज योर 2 इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म y ऑफ t इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म e रेज टू t क्या होगा? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म e रेज टू t? 1 upon s. 1 1 अपॉन upon s. s. -1. s माइनस 1 होगा ना. यस सर. ओके, सो 1 अपॉन s माइनस 1 मैंने उसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दिया. ओके, अब इसकी वैल्यू कितनी है y ऑफ 0 की? 1 तो इसकी जगह पे मुझे 1 रिप्लेस करना है. y डैश 0 0, तो जहां पर भी वो है वहां पे आपको रिप्लेस करना है. तो हम रिप्लेस कर देते हैं अब नेक्स्ट में. तो यहाँ पे आपके पास हुआ s स्क्वायर इंटू वाई बार एस माइनस एस, ये तो 0 हो गया, प्लस 3s वाई बार एस, ये हो जाएगा 1, सो माइनस 3 प्लस 2 इंटू वाई बार एस इज इक्वल टू 1 अपॉन एस माइनस 1. इज इट ओके एवरीबडी? ओके, सो यहाँ पे मैंने y बार एस को कॉमन ले लिया. सो एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन एस माइनस 1, और ये माइनस एस माइनस 3 उस साइड पे जाएंगे तो प्लस एस प्लस 3 हो जाएंगे. ओके, अब मैं यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ. तो 1 प्लस एस प्लस 3 इंटू एस माइनस 1 डिवाइड बाय एस माइनस 1 हो जाएगा. इज इट ट्रू? यस सर. Yes, sir. y बार एस इज इक्वल टू मुझे मिलेगा 1 प्लस एस स्क्वायर माइनस एस प्लस 3s माइनस 3 डिवाइड बाय एस माइनस 1 इंटू एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं. चलो, तो ये होगा एस स्क्वायर माइनस एस प्लस 3s हो जाएगा 2s, एंड यहाँ पे मुझे मिलेगा माइनस 2. अब यहाँ पे s माइनस 1, कैन बी फैक्टराइज दिस वन. एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2 का फैक्टराइजेशन कर सकते हैं हम. यस सर. है s ना? प्लस 1 s प्लस 2. वेरी गुड. s प्लस 1 s प्लस 2 मैंने यहाँ पे लिख ही दिया है. देखो, अब y बार एस इज इक्वल टू दिस वन, बट
आई कैन नॉट अप्लाई इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म डायरेक्टली, नहीं कर सकते ना इसको, इनवर्स लाप्लास डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो मैंने आपको बोला था ऐसे कि इसको थोड़ा आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना पड़ेगा। सो एस स्क्वायर प्लस 2s माइनस 2 डिवाइड बाय s माइनस 1, देखना है एवरीबडी, s माइनस, हाँ यस बोलो, क्या होगा, a अपॉन एस माइनस 1 प्लस b अपॉन एस प्लस 1 प्लस c अपॉन एस प्लस 2, यस और नो? लीनियर फैक्टर है तो केस 1 अप्लाई करना पड़ेगा ना। एवरीबडी अंडरस्टैंड? यस सर। s माइनस, यस, s प्लस 2 प्लस c करके s माइनस 1 s प्लस 1 डिवाइड बाय 3 फैक्टर s माइनस 1 s प्लस 1, जो हमने पार्शियल फ्रैक्शन में किया था वही का वही एग्जाम्पल यहाँ से रिपीट हो जाता है। तो यहाँ पे we can compare both the numerator, so we have s square plus 2s minus 2 equal to a into s plus 1 s plus 2 plus b s minus 1 s plus 2 plus c s minus 1 s plus 1. Now this is your equation number 2. Now how to find a b and c? कोई बताएगा मुझे a फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? Put s is equal to -1, so we can find माइनस 1 या 1? -1 से b मिलेगा सर। वन माइनस 1 से तो मुझे b मिलेगा, है ना? यस सर, -1 से b मिलेगा। यस, वेरी गुड। बट मुझे a फाइंड करना है तो s इज इक्वल टू 1, तो पुट s इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, है ना? तो इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, चलो, तो होगा 1 प्लस 2 माइनस 2 इक्वल टू a, यहाँ पे मेरे पास होगा 2, यहाँ पे 3, ये दोनों तो 0, क्योंकि 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, तो दोनों 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास हुआ 6a इक्वल टू 1, so a is equal to 1 by 6. Yes or no everybody? Now similarly अभी बोला उन्होंने s is equal to -1 रिप्लेस करने से मुझे b मिलेगा, so -1 रिप्लेस करते हैं तो मेरे पास होगा 1 minus 2 minus 2 is equal to फर्स्ट वन इज 0, b में यहाँ पे होगा -2, यहाँ पे होगा 1 प्लस c में यहाँ पे होगा -1, लेकिन पीछे की तरीके से 0 हो जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पे -2b इज इक्वल टू, यहाँ पे -3 आएगा, सो b इज इक्वल टू 3/2। एवरीबडी गॉट इट? मिला सबको ये b? यही मिल रहा है ना b? एवरीबडी? यस सर। अब c के लिए मुझे क्या रिप्लेस करना है? s इज इक्वल टू -2, यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 प्लस c इंटू -3, और यहाँ पे -2 प्लस 1, सो -1, सो वी हैव 4 कैंसिल आउट, 0 -2, सो -2 इज इक्वल टू माइनस प्लस 3c, सो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा? -2/3। वेरी गुड। सो ABC हमारे पास आ गया। एवरीबडी अंडरस्टैंड अप टू हियर? Yes, sir. ओके, नाउ सब्स्टिट्यूट दिस ABC इन आवर इक्वेशन 1, क्योंकि इक्वेशन 1 की ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ना। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या लिख पाएंगे? देखो यहाँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 y बार s इज इक्वल टू a अपॉन मीन्स क्या है? a मेरा 1/6 ना, सो 1/6 डिवाइड बाय s माइनस 1 प्लस b मीन्स 3/2 डिवाइड बाय s प्लस 1 प्लस c मीन्स -2/3 डिवाइड बाय s प्लस 2। सो मेरा y बार s, नाउ आई कैन अप्लाई द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म डायरेक्टली। कर सकते हैं कि नहीं? है ना student, are you getting my point? Yes, sir. Okay, so apply inverse Laplace transform both sides. Okay,
सो यहाँ पे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑपरेट करेंगे. सो लाप्लास इनवर्स ऑफ y बार s is equal to Laplace inverse of 1 by 6 divided by s minus 1 plus Laplace inverse of 3 by 2 divided by s plus 1 माइनस, यहाँ पे माइनस बाद में ले लेंगे, चलो, प्लस लाप्लास इनवर्स ऑफ माइनस 2 बाई 3 डिवाइड बाय s प्लस 2. ओके, अब यहाँ पे दिस इज नथिंग बट योर y ऑफ t है ना, इसको तो y ऑफ t बोल देंगे. नाउ 1 by 6 आउटसाइड बाय यूजिंग लीनियरिटी प्रॉपर्टी. नाउ व्हाट इज द लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s minus 1? e raised to t. raised to t. Very good. E raised to t plus 3 by 2 is outside. What is the Laplace inverse of 1 upon s plus 1? e raised to minus E t. raised to minus t. Plus, sorry, minus 2 by 3 है ना. So minus 2 by 3 is outside. What is the Laplace inverse of 1 upon s plus 2? e raised to minus 2t. E raised to minus 2t. Very good. So which is required solution of given differential equation. So is there any doubt, any confusion in this example? Anybody? No, sir. No? Okay. Doubts. Okay, I give you this example in homework. चलो इसके लिए try करना है ना. So is there any doubt, any question in today's session? Anybody? No doubt, sir. No doubt, sir. Okay, thank you. So good day.